हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पार्ट नंबर बी का सेट नंबर 3 अग्रवाल पब्लिकेशंस क्लास 12 सेक्शन ए। मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज आपका दिया गया है, द कम्युनिटी ऑफ आर एंड्स आर समटाइम्स वेरी लार्ज नंबरिंग even up 500 individual, and it is a lesson to us that no one has ever yet seen a quarrel between any two ants belonging to the same community. On the other hand, it must be admitted that they are in hospitality not only with most other insects, including ants of different species, but even with those of the same species of belonging to different communities. I have over and over again introduced ants from one nest to another of the same species, and they were invariably attacked, seized by a leg or an antenna and dragged out. It is evident therefore that the ants of each community all recognized one another and were perfectly friends, while they at one attacked ant from a different nest, although of the same species of, has been suggested that the ant of each nest have some sign or password by which they recognize one another. To test this, I made some of them insensible. First, I tried chloroform, but this was fatal to them, and I did not consider that test satisfactory. I decided therefore to intoxicate them. This was less than easy than I had expected. None of my ants would voluntarily degrade themselves by getting drunk. However, I got over the difficulty by putting them into whiskey from for a few moments. I took 50 specimens, 25% from one nest and 25% from another, made them dead drunk, marked each with a spot of paint, and put them on a table close to where other ants from one of the nests were feeding. The table was surrounded as usual with a moat of water to prevent from staying. The ants which were feeding soon and noticed those which I had made drunk. It seemed quite an astonished to find their comrades in such a disagreeable condition, and were as much at a loss of know what to do with them as we were. After a while, however, they carried them all away. They took the strangers to the edge of the moat and dropped them into the water, while they bore their friends home into the nest, where by degrees they slept off the effect of the spirits. Thus it is evident that they know their friends even when it is incapable of giving any sign of password. चींटियों का समुदाय कभी कभी बहुत बड़ा होता है, जिनकी संख्या 500 व्यक्तियों तक भी होती है, और
यह हमारे लिए एक सीख है कि एक ही समुदाय की किन्हीं दो चींटियों के बीच अभी तक किसी ने झगड़ा नहीं देखा है। दूसरी ओर यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि वे केवल विभिन्न प्रजातियों की चींटियों सहित अधिकांश अन्य कीड़ों के साथ में बल्कि एक ही प्रजाति के उन लोगों के साथ भी शत्रुता में हैं जो विभिन्न समुदाय से संबंधित हैं। मैंने बार बार एक ही प्रजाति के एक घोंसले से दूसरे घोंसले में चींटियों को पेश किया है और उन पर निरपवाद रूप से हमला किया जाता था। एक पैर या एक एंटीना द्वारा कब्जा कर लिया जाता था और बाहर खींच लिया जाता था। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रत्येक समुदाय की चींटी एक दूसरे को पहचानती है और पूरी तरह से मिलनसार होती है, जबकि वे एक ही प्रजाति की होने के बावजूद एक ही समय में अलग घोंसले से चींटियों पर हमला करती हैं। यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक घोंसले की चींटियों के पास एक संकेत या पासवर्ड होता है जिसके द्वारा वे एक दूसरे को पहचानती है। इस कारण परीक्षण करने के लिए मैंने उनमें से कुछ असंवेदनशील बना दिया। पहले मैंने क्लोरोफॉर्म की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए घातक था और मैंने परीक्षण को संतोषजनक नहीं माना। इसलिए मैंने उन्हें नशा करने का फैसला किया। यह मेरी अपेक्षा से कम आसान था। मेरी कोई भी चींटियां नशे में धुत होकर स्वेच्छा से अपना पतन नहीं करेगी। हालांकि मैंने उन्हें कुछ पलों के लिए विस्की में डाल दिया, कठिनाई पर काबू पा लिया और जैसे ही 50 नमूने के लिए घोंसले में 25% और दूसरे से 25% उन्हें मृत नशे में डाल दिया। इस प्रत्येक को पेंट के साथ चिह्नित किया और उन्हें एक मेज पर रख दिया जहां एक घोंसले के अन्य चींटियां खिला रही थी। उन्हें भटकने से रोकने के लिए टेबल को हमेशा की तरह पानी की एक खाई में गिरा हुआ था जो चींटियां खिला रही थी। उन्हें जल्द ही उन पर ध्यान दिया। जिन्हें मैंने किया था वे अपने साथियों को इतनी शर्मनाक स्थिति से पाकर काफ़ी चकित थे और उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है। मैं जैसे ही हम थे, कुछ समय के बाद वे उन सभी को ले गए। वे अजनबियों को खाई के किनारे पर ले गए और उन्हें पानी में गिरा दिया, जबकि वे अपने दोस्त को घोंसले में घर ले गए जिससे वे आत्माओं के प्रभाव से सो गए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे अपने दोस्त को तब भी जानते हैं जब वह कोई संकेत या पासवर्ड देने में असमर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेसन डज द राइटर वांट टू टीच अस फ्रॉम द पैसेज। तो लेखक हमें इस पैसेज के माध्यम से क्या बताना चाहता है। द कम्युनिटी ऑफ एंड्स एंड सम देमसेल्फ वेरी लार्ज इन नंबरिंग्स इवन up the 500 individual, and it is a lesson to us that no one has ever yet seen a quarrel between any two ants and belonging to the same community। चींटियों का कभी समुदाय बहुत बड़ा होता है जिसकी संख्या 500 व्यक्तियों तक भी होती है। हमारे लिए यह एक सीख है कि एक समुदाय के किन्हीं दो चींटियों के बीच अभी तक किसी ने झगड़ा नहीं किया। तो इसी तरह से हमें भी अपने एक समुदाय में झगड़ा हो या कोई किसी से कुछ नहीं करना चाहिए। यह हमारे लिए एक सीख है। वाई डिड द राइटर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट विद ड्रंक एंड राइटर ने नशे में धुत चींटी के साथ प्रयोग किया। तो राइटर ने प्रयोग किया था। द एंड इन द ईच नेस्ट हैव सम साइन पासवर्ड बाय विच इज आइडेंटिफाई ईच अदर टू टेस्ट दिस ही मेड सम ऑफ देम insensitive. First he tried to chloroform, but it was fatal to them and he did not consider the rest satisfactory, so he decided to drug them। प्रत्येक घोंसले में चींटियों के पास कुछ चिन्ह या पासवर्ड होता है जिसके द्वारा वे एक दूसरे की पहचान करते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए उसने उनमें से कुछ को संवेदनशील बना दिया और उनसे क्लोरोफॉर्म की कोशिश की, मतलब क्लोरोफॉर्म की उसमें उनको पिला दिया या भर दिया, लेकिन यह उनके लिए घातक था और
उन्होंने परीक्षण को संतोषजनक नहीं माना, इसलिए उन्हें नशा करने का फैसला, मतलब नशीले पदार्थ देने का फैसला किया। What has writer discovered the and one of the community do not welcome ants of another community. He has over and over again introduced ant from one nest to another of the same species, and they were invariably attacked, seized by a leg or a antenna and dragged out. उसने बार बार एक ही प्रजाति के घोंसले के दूसरे घोंसले से चींटियों को पेश किया और उन पर निर्विवाद रूप से हमला किया जाता था। एक पैर या एक एंटीना पर कब्जा कर लिया जाता था और बाहर खींच लिया जाता था। हाउ डू द एंट्स सर्च देयर लॉस्ट कमरेड्स। चींटियाँ अपने खोए हुए साथियों को कैसे खोजती हैं? द सर्च बाय सम साइन और पासवर्ड देयर लॉस्ट कमरेड्स। कम्युनिटी हेयर इज़ यूज्ड फॉर एंड्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। फिर है फाइंड डायरेक्ट का मतलब हो जाएगा ड्रॉ आउट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा दिस वॉज लेस देन इज एसे देन आई हैड एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट पैसेज दिया गया, इसको भी रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज है It may surprise many people that a thing like worry can be a killer. This has been proved by all medical resources that worry is a major cause of heart ailments, blood pressure, rheumatism, ulcer, skin problem, asthma, and many other psychosomatic disease. Dr. Alexis Carrel, a Nobel Prize winner in the medicine, said, "Businessmen who do not know how to fight worry dies young, but so do a lot of homemakers, lawyer, and ordinary clerk who do not control this evil. There are several causes of worries: the fast pace and complicated lifestyle the most people are leading today contributes largely to our anxiety, shortage, fear, competitions, dissatisfactions. Everything add to the burden on our mind. Some of these factors may be uncontrolled, but most of them are within our control. Plato, the Greek philosopher, had foreseen this need as far back as 400 BC. He had said the greatest mistake a physician make is that they attempt to cure a body without attempting to cure the mind. Mind and body are one and should not be treated separately. This was the basis that laid the foundation stone of the modern psychometric treatment. The children, we have heard the famous quotation, a healthy mind in a healthy body. One has just to alter the saying a little to fit in the modern times. A healthy body depends on healthy mind. Emotion like futility and frustration, anxiety, worry, fear, despair, defeat, etc. or negative emotion. These affect much our mental as well as physical health. Worry especially creates a very high degrees of tension. Many times we find ourselves unable to concentrate due to worry. Only a cool and worryless mind function normally and to its capacity. चलिए इसकी हिंदी दोस्तों ये दी गई है। यह कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है कि चिंता जैसी कोई चीज़ हत्यारा हो सकती है। यह सभी चिकित्सा अनुसंधान से सिद्ध हो चुका है कि चिंता हृदय के रोगों को एक प्रमुख कारण रही है। रक्तचाप, गठिया, अल्सर एवं त्वचा की समस्याएं, अस्थमा और कई
मनोदैहिक रोग हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अलेक्सिस कैरल ने कहा है कि व्यवसायी जो चिंता से लड़ना नहीं जानते हैं युवा ही मर जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत से गृहिणी, वकील और साधारण क्लर्क करते हैं जो इस बुराई को नियंत्रित नहीं करते हैं। चिंता के कई कारण हैं। आज अधिकांश लोग जितनी तेजी से तेज तर्रार और जटिल जीवन शैली का नेतृत्व कर रहे हैं वह हमारी चिंताओं में काफ़ी हद तक योगदान करती है। कमी, भय, प्रतिस्पर्धा, असंतोष सब कुछ हमारे दिमाग पर बोझ डालता है। इसमें से कुछ कारक नियंत्रित हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश हमारे नियंत्रण में हैं। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने 400 ईसा पूर्व में इस आवश्यकता की पूर्वाभास कर ली थी। उन्होंने कहा था कि चिकित्सा का सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे मन को ठीक करने की कोशिश किए बिना शरीर को ठीक करने का प्रयास करते हैं। मन और शरीर एक है और अलग अलग इलाज नहीं किया जाना चाहिए। यह सब वह आधार है जिससे आधुनिक मनोदैहिक उपचार की आधारशिला रखी है। बच्चों के रूप में हमें प्रसिद्ध उदाहरण सुना है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ दिमाग। किसी को बस कहावत को थोड़ा बदलना है कि फिट होने के लिए आधुनिक समय एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन पर निर्भर करता है। व्यर्थता, निराशा, चिंता या भय, निराशा, हार आदि जैसी भावनाएं नकारात्मक हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से चिंता पैदा करती हैं। तनाव का एक बहुत उच्च स्तर कई बार चिंता के कारण खुद को ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ पाते हैं। केवल एक शांत और चिंतित मन सामान्य रूप से अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। व्हाट आर द कॉज ऑफ वरी इन द लाइफ ऑफ मैन। तो मनुष्य के जीवन में चिंता का कारण क्या है? देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ कंसर्न एंड फर्स्ट पीस एंड कम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल द मोस्ट पीपल एंड लीड टूडे कंट्रीब्यूट्स और वरीज टू ग्रेट एक्सटेंस। आज अधिकांश लोग तेज तर्रार और जटिल जीवन शैली का नेतृत्व कर रहे हैं। यह हमारी चिंताओं में काफ़ी हद तक योगदान करती है। कमी, भय, प्रतिस्पर्धा, असंतोष सब कुछ हमारे दिमाग पर बोझ डालता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एंग्जाइटी? चिंता का परिणाम क्या है? तो रिजल्ट ऑफ एंग्जाइटी क्या हो सकता है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर का कॉज ऑफ ए रैपिड हार्ट रेट एंड palpitations and chest pain. You may also be at an increased risk to high blood pressure and heart disease. If you already have heart disease, and anxiety disorder may raise the risk of coronary events. चिंता विकार तेजी से हृदय की गति, धड़कन और पसीने से दर्द का कारण बन सकते हैं। आपको उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। यदि आपको पहले से ही हृदय रोग है तो चिंता विकार कोरोनरी घटनाओं को जोखिम में बढ़ा सकते हैं। हाउ हैव मेडिकल रिसर्च कंडक्ट अबाउट वरी? द बिगेस्ट मिस्टेक डॉक्टर make is they try to heal the body without try to fix the mind. Mind and body are one and should not be treated separately. This was a promise that laid the foundation for the modern psychosomatic treatment. चिकित्सा की सबसे बड़ी गलती यह है कि मन को ठीक करने की कोशिश किए बिना शरीर को ठीक करने का प्रयास करते हैं। मन और शरीर एक है और अलग अलग इलाज नहीं किया जाना चाहिए। यह वह आधार है जिसे आधुनिक मनोवैदिक उपचार की आधारशिला रखी है। What are actually various emotions that are dangerous to our health? वास्तव में विभिन्न भावनाएं क्या हैं जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? फीलिंग लाइक वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, worry and worry, fear and hopelessness, defeat, etc. or the negative emotion, they greatly affect our mental and फिजिकल हेल्थ। व्यर्थ, निराशा, चिंता, भय, निराशा आदि, हार आदि जैसी भावनाएं नकारात्मक भावनाएं हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती हैं। वन हु डीपली थिंक ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ
लाइफ इज कॉल्ड, तो फिलोसफर हो जाएगा उसको जो हर पहलुओं पर गहराई से विचार करता है उसको। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एंग्जाइटी, तो वरी हो जाएगा। और यहाँ पर है फाइंड द अपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।